آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے محرم الحرام کی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے علم اور تعزیے کے جلوس نکالے گئے ہیں۔ عزاداروں کی جانب سے ماتم اور نوحہ خوانی کی گئی۔ ملتان میں 8 محرم الحرام کے سلسلے میں قدیم علم پاک کے جلوس ممتاز آباد سے برآمد ہوا۔ جلوس میں گھر گھر سے علم نکالے گئے۔ عزاداروں نے سینہ کوبی کر کے نواز رسول کو پرسہ پیش کیا۔ مختلف مقامات پر سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ بہاولپور میں 8 محرم الحرام کا جلوس سید ممتاز حسین نقوی کے آستانے سے برآمد ہوا۔ ہزاروں عزاداران نے شرکت کی۔ ریہاڑی میں 8 محرم الحرام کا جلوس قصر ابو طالب کچا امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ احمد پور شرقیہ کا مرکزی جلوس آستانہ نظر حسین شاہ سے برآمد کیا گیا۔ ڈی ایس پی آصف رشید اور اسسٹنٹ کمشنر عثمان گیلانی نے جلوس روٹس کا دورہ کیا۔ جلال پور پیروالا میں شہزادہ قاسم علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس حیدری بازار سے برآمد ہوا۔ عزاداروں کی جانب سے ماتمداری اور سینہ کوبی کی گئی۔ کہروڑ پکا میں 8ویں محرم الحرام کا جلوس سید نیر شاہ کے گھر سے برآمد۔ بہاول نگر میں شہزادہ قاسم کے مہندی کا قدیمی جلوس امام بارگاہ باب علی سے برآمد ہوا۔ جلوس امام بارگاہ جامعۃ الزہرا پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ لیا میں 8ویں محرم الحرام کا روایتی جلوس امام بارگاہ دربار عارف شہید سے برآمد ہو کر امام خانہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی، ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء اور ڈی پی او سید علی رضا نے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ 8 محرم الحرام علم حضرت عباس علیہ السلام ملنی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سید کاشف رضا ارد شریف موغلہ سے برآمد ہوا۔ جلوس صدر بازار پہنچا تو نماز ظہرین ادا کی گئی۔ نماز ظہرین کے بعد جلوس امام بارگاہ محلہ خواجگان پہنچا جہاں ملنی ادا کی گئی۔ ملنی کے بعد مجلس عزا منعقد کی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان میں قصر سکینہ چاند محمد کالونی میں 8 محرم الحرام کی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ ذاکر سید مزمل حسین شاہ، علی رضا سابقی، ذاکر مقصود الحسن امداد، تنویر حسین خان اور امداد رضا سندھو نے شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ ملتان قصر سکینہ جان محمد کالونی میں 8 محرم الحرام کے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ ذاکر امداد رضا نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ مجلس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ذاکر امداد رضا نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ تنویر حسین خان اور دیگر ذاکرین نے بھی مجلس میں بھرپور حصہ لیا۔ اہل بیت کے مصائب پڑھے۔ مجلس کے اختتام پر ذوالجناح کا جلوس بھی نکالا گیا۔ دوسری جانب ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امام بارگاہ حسین آباد کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کو پروان چڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے امام بارگاہ حسین آباد کا دورہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے مومنین سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات ہمیں اسی کا درس دیتی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق کے سفیر سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا سفارت خانہ بنائیں تاکہ زائرین کو مقام مقصد ساتھ کے لیے آسانی ہو۔ خطاب کے اختتام پر متولی امام بارگاہ حسین آباد ارشاد کھوکھر اور صدر تحفظ عزاداری کونسل شفقت بھٹا کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ناصر مشیر صحت محمد خنیف خان پتافی کی رحیم جار خان آمد ہوئی۔ ماتمی جلوسوں کے روٹ شیخ زاید اسپتال ایمرجنسی وارڈ اور کنٹرول روم کا دورہ کیا ہے۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ضلع کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عامر بھٹی کی رپورٹ۔ صحت محمد حنیف خان پتافی نے رحیم یار خان کا دورہ کیا۔ ریلوے چوک میں لنگر حسینی امام بارگاہ کے ماتمی جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات چیک کیے۔ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد، ڈی پی او اسد سرفراز اور اے سی عثمان چودھری اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مشیر صحت نے ضلعی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ انہوں نے شیخ زاید ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو دی جانے والی علاج معالجہ کی سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات قابل تعریف ہیں۔ تو سیکیورٹی کے بہترین ارینجمنٹ کیے گئے ہیں، جتنے بھی ان کے پروسیشن ہیں ان کو کور کرنے کے لیے کیمراز لگائے گئے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کو ڈیولپمنٹ پیکج کیا اور پہلی دفعہ کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج متعارف کرایا گیا ہے۔ وہ علاقے جو ترقی میں پیچھے رہ گئے تھے ان کو کافی فنڈ فراہم کیے جائیں گے۔ مشیر صحت محمد حنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کے شہریوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔
دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سی ایم پنجاب نے ممبران اسمبلی کو عشورہ کے دوران حلقے میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بیشتر اراکین اسمبلی ملتان پہنچ گئے ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی جاوید اختر انصاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق جلوس اور مجالس میں شریک ہوں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے ملتان سے ممبران اسمبلی کو عشورہ کے دنوں میں حلقے میں رہنے کی ہدایت کر دی، جس کے بعد بیشتر اراکین اسمبلی ملتان پہنچ گئے۔ ممبر صوبائی اسمبلی جاوید اختر انصاری نے روحی کو بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر جلوس اور مجالس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہی محرم کے عشورہ کی وجہ سے کہ جتنی بھی ان سے سیکورٹی ملتان کی جو انتظامیہ ہے، آر پی او ہے، سی پی او صاحب ہے، سب انتظامیہ کٹی تھی، تو ان سے یہی کہا گیا، ان کا جائزہ لیا گیا اور انہیں پوچھا گیا کہ کیا انتظامات ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اور وزیر اعلیٰ کا بھی ہمیں یہ بہت اسرار اور ان کا یہ میسیج ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں رہیں۔ جاوید اختر انصاری کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی اپنے بارگاہیں ہیں وہاں ہم جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ انتظامات کیسے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو اپنا سی ایم صاحب کو بھی ضرور ہم میسج کرتے ہیں کہ حالات جو بہتر ہیں۔ جاوید اختر انصاری نے علماء کرام کے کردار کو سراہا اور عزادران حسین علیہ السلام سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کی درخواست کر دی۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان میں محرم الحرام کے موقع پر انتظامیہ اور پولیس قیام امن کے لیے مکمل الرٹ ہے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال آبان، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور CPO منیر مسعود کے ہنگامی دورے بھی ہوئے، جبکہ افسران نے جلوس کے روٹس کا بھی معائنہ کیا ہے۔ ملتان میں محرم الحرام کے موقع پر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال آبان، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور CPO ملتان منیر مسعود مارٹ کی جانب سے دورے کیے گئے۔ ایڈیشنل IG اور ڈپٹی کمشنر نے CPO کے ہمراہ ممتاز آباد کا وزٹ کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اور ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے روٹس پر سیکورٹی انتظامات چیک کیے۔ CPO ملتان منیر مسعود مارت نے امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ایڈیشنل IG کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال آبان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں امن و امان خراب کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا کہنا تھا کہ سول سوسائٹی، علماء کرام اور قیام امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ CPO ملتان نے کہا کہ حساس مقامات اور مجالس پر خصوصی سکریننگ کی جا رہی ہے۔ کسی بھی شرپسندی سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی ادارے فوری حرکت میں آئیں گے۔ ملتان ٹریفک پولیس نے عشورہ محرم کے لیے پلان مکمل کر لیا ہے۔ ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی۔ 500 سے زائد ٹریفک اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ یاسر مجید کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان ٹریفک پولیس نے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے لیے پلان ترتیب دے دیا۔ 9 محرم الحرام کو ممتاز آباد کی جانب جانے والے تمام روڈ بند کر دیے جائیں گے۔ ممتاز آباد ہمارا مین پروسیشن ہوگا اور وہاں پہ جو ہے BCG چوک اور چوک شہباز، ممتاز آباد، یہ سارا ایریا جو ہے یہ بند ہوگا، کیونکہ ہم نے ڈائیورشنز لگانی ہیں۔ یہاں پہ کسی قسم کی آمد و رفت جو ہے وہ منع ہوگی، کیونکہ مین پروسیشن اس وقت چل رہا ہوگا اور یہ مغرب تک تقریباً یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس کے لیے ہم نے پلان کیا کہ BCG چوک سے چنگی نمبر 14 ہے، BCG چوک سے چوک شہباز جائیں گے، چوک شہباز سے حرم گیٹ، یہ اس روٹ کو استعمال کریں گے۔ یہ پبلک کی آسانی کے لیے ہم نے متبادل راستے کے طور پر رکھا ہوگا، تاکہ وہاں اس ایریا میں موومنٹ کے لیے لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 10ویں محرم الحرام پر حرم گیٹ چوک، گھنٹہ گھر، سورہ میانی اور شاہ شمس دربار کی جانب جانے والے تمام راستے بند ہوں گے۔ ٹریفک کو متبادل راستوں پر بھیجا جائے گا۔ اندرون سرکولر روڈ جو ہے یہ بند ہوگا۔ دولت گیٹ چوک سے حرم گیٹ، بوہٹ گیٹ سے حرم گیٹ تک، خونی بٹ سے حرم گیٹ تک یہ ایریاز بند ہوں گے۔ ظہر کے وقت سے MDA چوک اور سورہ میانی روڈ یہ بھی مغرب تک آلموسٹ ہم نے پلگ کیا ہوگا، اور کچہری چوک سے گھنٹہ گھر اور شاہ شمس دربار یہ ظہر سے مغرب تک یہ ایریاز بھی ہم نے پلگ کیے ہوں گے۔ CTO جلیل عمران کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ڈبل سواری پر مکمل پابندی ہوگی۔ ڈبل سواری، ٹرپل سواری پہ پابندی ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن آج متوقع ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، تو پھر ڈبل سواری اور ٹرپل سواری پہ پابندی ہوگی۔ اس پہ ہم لوگوں کو موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے سڑکوں پہ نہیں آنے۔ جلوسوں اور مجالس پر 500 سے زائد ٹریفک اہلکار تعینات ہوں گے۔ پارکنگ کی جگہ مجالس کے مقام سے 200 میٹر دور بنائی گئی ہے۔ CTO نے عوام سے کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل کر دی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتے ہیں۔ فاطمہ تو زہرا کے بچوں سے محبت کر لو،
ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। मुल्तान में हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में अलम पाक की तैयारियां जारी हैं। ये शबी कैसे बनती है और तैयारी में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बता रहे हैं अमजद मलिक। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में बुलंद किए जाने वाले अलम पाक वाक़े करबला की बड़ी निशानियों में से एक है। मुल्तान में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने और हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में अलम पाक की तैयारियां जारी हैं। मुल्तान में हाफिज जमाल रोड के रिहायशी 45 साला खादिम हुसैन पिछले 18 साल से अलम पाक तैयार कर रहे हैं, जो मातमी जुलूसों में बुलंद और इमाम बारगाहों और घरों पर लगाए जाते हैं। 18 साल हो गए हैं और हमारे काम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन दिनों में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे लिए ये काम मुकम्मल करना, कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये काम शोहदाए करबला की याद के लिए कर रहे हैं। अलम की तैयारी में खास किस्म के सुर्ख और काले कपड़े पर मुख्तलिफ रंगों के धागों और मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। कारीगर के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दिनों में डिमांड और काम बढ़ जाता है। इसके अलावा जुल्फ़कार और जुलजना समेत दीगर शबियात भी बनाई जाती हैं। तो डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारे अलम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बड़े शहरों में, खासकर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, फिर छोटे छोटे शहर जो हैं कस्बे वगैरह, खानेवाल हो गया, शुजाबाद हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरह के शहरों में जाता है हमारा काम बन के पूरे पाकिस्तान में। तैयार किए गए ये अलम न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर में हदिये के तौर पर फरोख्त किए जाते हैं। शोहदाए करबला को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जहां पे ताज़ियों की तैयारी का मरहला आखिरी मराहिल में है, वहां पे अलम पाक की तैयारी भी जारी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नासिन 8 मुहर्रम उल हराम के दिन को मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से याद रखा जाता है। गाजी अब्बास अलमदार ने अलम की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की है। महमूद जहीद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। अलम की इस्लाम में बहुत अहमियत है। पहले ज़मानों में जंगों में अलम की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती थी। गाजी अब्बास अलमदार ने भी करबला में हजरत इमाम हुसैन का साथ देते हुए अलम की भरपूर हिफाजत की। जैसे कि आप जानते हैं कि मौला इमाम हुसैन ने मौला गाजी अब्बास को अलम दिया, तो उसी की निस्बत से हम ये अलम उठाते हैं और जुलूसों में भी जाते हैं और मातम भी करते हैं। अलम जो है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर तैयार को दिया, फिर वहाँ से मौला अली को मिला, वहाँ से करबला में जो है ना मौला हुसैन ने मौला अब्बास को अलम दिया। मुहर्रम उल हराम में तमाम जुलूसों की क़यादत अलम वालों के हाथों में होती है। गाजी अब्बास अलमदार ने करबला में दोनों बाजू कटवा लिए, लेकिन अलम की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। क़यामत के रोज मौला रसूल पाक मौला अली अलैहिस्सलाम को एक अलम देंगे, जो उस अलम के साए में होगा अमान में होगा, और जो उस अलम के साए में नहीं होगा उसे अमान हासिल ना हो सकेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया तो अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि राजनपुर में शहजादा अमीर कासिम की सेज की शबी बरामद की जाती है, जिसका सिलसिला गुज़श्ता 3 नस्लों से जारी और सारी है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद। करबला के मैदान में हजरत इमाम हसन के फर्जंद शहजादा अमीर कासिम की अजीम कुर्बानी की याद में सेज की शबी बरामद की जाती है। मुंतज़मीन का कहना है कि 3 नस्लों से ये सिलसिला जारी है। बचपन से हम लोग देख रहे हैं, हमारे जो बुजुर्गान हैं वो इसको तैयार कर रहे हैं। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी हम तक मुंतकिल की है। अब ये जिम्मेदारी आने वाली नस्ल को हम मुंतकिल करें कि ये जो याद है इमाम हुसैन अस्सलाम की और इस शहजादे की, ये आने वाली नस्लों तक हमारी नस्लें भी हैं वो इसके जिम्मेदारी संभालें। सेज की शबी बरामद करने का ये सिलसिला अब नई नस्ल में मुंतकिल हो चुका है, जो आबा व अजदाद की जानिब से मिलने वाले इस मिशन पर फख्र महसूस करते हैं। ये एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए। बचपन से ही हम लोग छोटी एज से ही हमें पता है कि घर से शबी बरामद होती है। हम खुद भी इसमें काफ़ी भरपूर हिस्सा डालते हैं। शहजादा अमीर कासिम की सेज की शबी की तैयारी इंतहाई निफासत से की जाती है ताकि सेज खूबसूरत तरीन नजर आए। शहजादा अमीर कासिम की सेज की ये शबी तैयार करके जहां मुंतज़मीन उनकी अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं, वहीं पर हज़ारों की तादाद में आने वाले ज़ायरीन इस शबी की ज़ियारत करके ज़हनी व कल्बी सुकून भी हासिल करते हैं। कैमरा टीम के हमरा खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर।
नासिन मुल्तान में घंटा घर चौक पर हर साल की तरह वाक़े करबला से मंसूब तबरकात सजा दी गई हैं। अलम पाक, झूला अली असगर, शहदाए करबला के रोज़ों की शबीहात की ज़ियारत करने के लिए अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से घंटा घर चौक मुल्तान में तबरुकात सजा दी गईं, जिनमें अलम पाक, झूला अली असगर, शोहदाए करबला के रोज़ों की शबीहात शामिल हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए अज़ादारान की बड़ी तादाद मौजूद होती है। ये जो अलम पाक देख रहे हैं, ये हज़रत पीर लाल शाह बादशाह की जगह खरीद है। ये घंटा घर पर यहाँ पे तकरीबन हर शब जुमेरात ज़ेर क़यादत मखदूम सैयद हसन रज़ा मुशद्दी की क़यादत में ज़ेर तमाम यहाँ दुआ होती है, लंगर का इंतज़ाम होता है। हर अज़ादार मातमीन यहाँ शब जुमेरात को आया करते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को आस्ताना लाल शाह से बरामद होने वाला जलूस वापस इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। जलूस में जुल्जना और ताज़िये की बरामदगी पर बड़ी तादाद में अज़ादारान शोहदाए करबला की याद में सीना कोबी और जंजीर जनी भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है 10 मुहर्रमुल हराम का आस्ताना हज़रत पीर लाल शाह बादशाह का जुलूस बरामद होकर घंटा घर इस अलम पाक पर तकरीबन 2 से 3 घंटे का इनका क़याम पजीर होता है इस अलम पाक पर। और इस टाइम ये जो अलम पाक को आप देख रहे हैं सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम वगैरह मखदूम सैयद हसन रज़ा मुशद्दी बादशाह ने किया। घंटा घर चौक में शबीहात सजाने का सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। ख़वातीन इन शबीहात पर अपनी मन्नतें भी मांगती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। भर रही है सिसकियां किसके लिए नहरे फुरात, ए ज़मीने करबला ये कौन प्यासा रह गया। शहर औलिया में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, हुसैन अगाही बाजार में गुज़श्ता 500 साल से पानी और शरबत की सबील लगाई जा रही है, जबकि यकम से 13वें मुहर्रमुल हराम तक पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं। मुल्तान शहर में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लग गईं। हुसैन अगाही बाजार में गुज़िश्ता 500 साल से मुसलसल पानी और शरबत की सबील लगाई जा रही है। यकम से 13वें मुहर्रमुल हराम तक पानी और शरबत की सबील लगाई जाती है। ये सबील माशाल्लाह सादात फैमिली ने बनाई हुई और काफ़ी अरसे से लोग यहाँ से फैज़याब भी होते हैं और लंगर सबील इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सदियों पुराना सिस्टम है, करबला के हवाले की याद है। मुंतज़मीन का कहना था कि सुबह 8 बजे से रात 1 बजे तक सबीलों से लोग पानी पीते हैं। सबील लगाने का मकसद ये बताना है कि मुसलमान पानी बंद करने के बजाय पानी पिलाते हैं। हमारे बुजुर्ग सालों से इसी मुकाम पर सबील लगा रहे हैं। यहाँ पे हम पानी लगा के सबील पिला के लोगों को ये बताते हैं कि करबला में लोगों ने जैसे इमाम हुसैन पर, उनके आल औलाद पर पानी बंद किया था, हम उस चीज़ को मुखालफत करते हुए लोगों को बताते हैं मुसलमानों का ये काम नहीं होता। अहले इलाका का कहना था कि वो भी बचपन से हर साल यकम से 13वें मुहर्रमुल हराम तक इसी जगह पर सबील देखते आ रहे हैं। हुसैन अगाही मेन बाजार में गुज़िश्ता 500 सालों से मुसलसल यकम मुहर्रमुल हराम से 13 मुहर्रमुल हराम तक करबला के प्यासों की याद में सबील लगाई जाती है, जहाँ से हर आने जाने वाले राहगीर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, शोहदाए करबला से इजहार अकीदत के लिए मुहर्रमुल हराम के दौरान सबीलें लगाई जाती हैं। मुल्तान में कदीमी मिट्टी के मटकों वाली सबील आज भी लगाई जाती है, जहां से अकीदतमंद अपनी प्यास बुझाते हैं। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम के आगाज पर शोहदाए करबला की प्यास की याद में सबीलें लगाई जाती हैं। मुल्तान में मिट्टी के प्यालों वाली सबील अपनी इनफरादियत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मिट्टी के बर्तन में सुन्नत है हमारे इमाम की, इसलिए ये मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करते हैं। मासूमीन करबला की भूख और प्यास का तस्वुर जहन में लाकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के चाहने वाले पानी के साथ साथ शरबत की सबील भी लगाते हैं। अकीदतमंदों की कसीर तादाद पानी की सबील से मुस्तफीद होती है। जी, हर साल लगाते हैं। इमाम हसन हुसैन की याद में सबील हर साल लगाते हैं। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के मैदान में प्यास की जो शिद्दत बर्दाश्त की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुहर्रमुल हराम के दौरान जहां मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं, वहीं पर मट्टी के बर्तनों में पानी पिलाने की रिवायत भी बहुत कदीम है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में फनकारों के घरों में मजालिस और नजरो नियाज का सिलसिला जारी है। मुल्तान की मरूफ अदाकारा वफा खान भी मुहर्रमुल हराम पर 24 सरगर्मियां उन्होंने तर्क कर दी हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। ये मनाजिर है मुल्तान की मारूफ अदाकारा वफा खान के घर के, जहां मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजलिस का इनेकाद किया गया।
जिसमें मुल्तान के शोबी सितारों ने शिरकत की। अदाकारा वफा खान का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस में शोबी सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। मद्दाहों को भी मुहर्रमुल हराम के एहतराम का दर्स देती हूँ। शहादत के दिनों में अगर एहतराम नहीं करेंगे तो कोई भी, मैं नहीं समझती कि कोई भी फिर मोमिन है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत एहतराम करना चाहिए। कम से कम अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10 दिन टोटली आपको एहतराम करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन रेगुलर शहादत की होती है। फनकारों का कहना था कि मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही उनकी आंखें नम और चेहरे मुरझा जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमारे लिए मशाल राह है। दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की मिसाल नहीं मिलती। काफिले भी नहीं जा रहे थे, इस वजह से मैंने जो मजलिस थी घर में करवाई, और मैं बकाया जो दिन थे उनमें मजलिस में जाती हूँ, रेगुलर रूटीन से मजलिस में जाती हूँ। मजलिस मेरे लिए ऐसे है कि जैसे सांस लेना होता है। अदाकारा का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में वाक़े करबला की याद में मजालिस का इनेकाद और जुलूस निकालते हैं और गमे हुसैन में नढाल रहते हैं। मुहर्रमुल हराम बातिल पर फतह का दिन है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करता है। यही वजह है कि मुल्तान की शोबी सरगर्मियां मुल्तान के तमाम एक्टर्स ने ख़त्म कर दी हैं और अपने घरों में मुकीम हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। दूसरी जानिब मियांवाली में मुहर्रमुल हराम के दौरान कब्रों पर लगाए जाने वाले कत्बों की मांग बढ़ गई है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। में कब्रों पर नस्ब किए जाने वाले संगे मरमर से बने कत्तों की मांग में इजाफा हो गया। खरीदारों का कहना है कि मरहुमैन की कब्रों पर लगाने के लिए कत्बे खरीदने आए हैं। मरहुमा वो इंतकाल कर गई हैं, तो मैं उनके लिए ना कोई कतबा यहाँ पे पसंद करने आया हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी खूबसूरत कतबे मौजूद हैं। दुकानदारों ने बताया कि कत्बों की कीमत 1000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक है। संगे मरमर को काट कर मुख्तलिफ रंग के कतबे बनाए जाते हैं। इनका जो रेट है ना वो तकरीबन 1000 से लेकर 6000 तक मैक्सिमम रेट चल जाता है कदमों का। हर किस्म के इसमें साइज हैं, इसमें सनी वाइट का पत्थर है, फ्लावर है, ग्रेनाइट है, सुपर वाइट, बहुत से ऐसे पत्थर। कातिब ने बताया कि लिखाई के बाद खुदाई की जाती है और फिर रंग भरा जाता है। उसके बाद रगड़ाई करके नामों को वाजे किया जाता है। इसकी लिखाई हम करते हैं, फिर उसके बाद इसकी खुदाई होती है। मार्बल की खुदाई के बाद प्रोसेस है इसका पेट भरने का। पेट जब खुश्क हो जाता है उसके बाद रगड़ाई इसकी होती है ग्राइंडर से, तभी जाके ये मुकम्मल होती है। दुकानदारों ने मजीद बताया कि मुहर्रम के इख्तिताम तक कत्बों की फरोख्त जारी रहती है। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कतबा जात पर नामों के अलावा शेर भी लिखे जाते हैं। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कुछ बात कर लें कोविड-19 की, तो जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में तेजी। 24 घंटों में मजीद 180 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सरगोदा में 41, मुल्तान 34 और खानेवाल में 23 अफराद में कोरोना की तस्दीक। रहीम यार खान में 17, बहावलपुर 11 और डीजी खान में 6 अफराद मुतासर हुए। लोधरा में 5, मुजफ्फरगढ़ 4, खुशाब और लैया में 15-15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिहाड़ी, राजनपुर और बहावल नगर में 3-3 केसेस सामने आ गए। खबरदार, होशियार, डॉक्टर्स ने कोरोना की चौथी लहर डेल्टा को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। माहिरीन कहते हैं इस लहर में कोरोना का शिकार होने वाले लोग तेजी से क्रिटिकल सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं। एहतियात न की तो मसाइल बढ़ भी सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की चौथी लहर, इंडियन कोरोना वायरस को माहिरीन ने इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मुनीर अजहर चौधरी का कहना था कि इस वायरस का शिकार होने वाले मरीज जल्द ही तशवीशनाक हालत तक पहुंच जाते हैं। पहले वाले जो वायरस है उससे ये वेरिएंट अपनी इसकी जो ट्रांसमिशन है, एक से दूसरे को लगने की सलाहियत वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा बहुत तेजी से फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं। डॉक्टर मुनीर अजहर का मजीद कहना था कि ये वायरस तेजी के साथ मरीज के फेफड़ों और सांस की नाली को मुतासिर कर रहा है। अगर एहतियात ना की तो मसाइल बढ़ सकते हैं। इसकी जो अलामात हैं वो कोई ज्यादा मोहलत ही नहीं दे रही। हल्का सा नजला हुआ, जुकाम हुआ, गले की खराबी और बुखार हुआ और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनके फेफड़े जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब एक दफा इन्वॉल्व हो जाए और मॉडरेट डिजीज हो जाए तो उसके बाद हमारे भी बस में नहीं रहता। ये तो जल्दी से पकड़ी जाए बीमारी तो तब बहुत मुमकिन है। माहिरीन का कहना था कि वायरस से बचाव का बेहतरीन जरिया वैक्सीन और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर।
नासिन गरीब के लिए अपना मकान बनाना ख्वाब बन गया है। तामीराती मटेरियल एक बार फिर महंगा। ईंटों की 3000 वाली ट्रॉली की कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। माजिद कलासरा की रिपोर्ट। गरीब के लिए एक नई मुश्किल, तामीराती मटेरियल एक बार फिर महंगा हो गया। ईंटों की ट्राली की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। 3000 ईंटों की ट्राली की कीमत 22,600 से बढ़कर 23,600 रुपए हो गई। शहरियों का कहना था कि ईंटें लेने आए हैं, रेट्स बढ़ गए, महंगाई के सुनामी में कैसे अपना घर बनाएं। 22,600 ट्राली लेने पे 23,600 24,000 ट्राली लेने पे महंगाई हाथ को ज्यादा थी वेंदी है। गरीब आदमी फिरता वेंदे, हुकूमत को चाहिए इन बारे नजरसानी करे, न कंट्रोल करे, भी महंगाई घट करे। दूसरी जानब ईंटों की कीमत बढ़ने से दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं कि भट्टे से महंगे दामों ईंटें मिलती हैं, महंगाई की वजह से गाहक मुश्किल से आते हैं। 1000 रुपये कम मिल रहा था, अब इन्होंने 1000 रुपये बढ़ा दिया है। इससे पहले बढ़ा था, अब फिर बढ़ गया। मुतालबा यही है कि रेट को कंट्रोल पर लाए हुकूमत और इनको एक जगह रखे। शहरियों ने हुकूमत से ईंटों की कीमत कम करने का मुतालबा किया ताकि गरीब अवाम अपना मकान बना सकें। तामीराती मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी अपना घर आसानी से बना सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मिठास गरीब आवाम से दूर होने लगी है। जिला इंतजामिया सरकारी रेट्स पर चीनी शहरियों को फराहम करने में नाकाम हो गई, जबकि मार्केट में फी किलो कीमत 110 रुपए से तजावुज कर गई है। चीनी मुकर्रर नर्ख से 21 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट्स पर चीनी लेना मुश्किल हो गया। जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस 21 रुपए के ज्यादा फर्क से चीनी शहरियों को मिलने लगी। मार्केट में चीनी 110 रुपए से ज्यादा में फरोख्त की जा रही है, जबकि चीनी का सरकारी रेट 99 रुपए मुकर्रर है। चीनी के नर्ख बढ़ने पर शहरी फट पड़े। इनका कहना था कि हर दुकानदार से मुख्तलिफ रेट पर चीनी की फरोख्त प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ से पूछे 105 है, आगे 110 है, कहीं 108 है, कहीं कुछ है, कोई सिस्टम नहीं है। सरकारी बंदे क्या कर रहे हैं, हर दुकान का मुख्तलिफ रेट है। ताज़ी करने वाले रेट हर चीज़ का बढ़ता जा रहा है। चीनी का बड़ा रेट है भाईजान, बहुत चढ़ गया है। गरीब बंदा क्या करेगा, समझ जाइए। बीमार बंदा दवाई ले या पेट भरे, क्या करे आप बताओ, तो फिर मर ही जाए बेहतर है। दूसरी जानब चीनी की सरकारी रेट्स पर फरोख्त न होने पर सदर करियाना रिटेलर एसोसिएशन मियां आफाक अंसारी का कहना था कि मुकर्रर सरकारी रेट पर दुकानदारों को चीनी नहीं मिलती, जबकि गला मंडी में 100 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी मिल रही है। ऐसे में अब दुकानदार कैसे कम रेट पर फरोख्त कर सकता है। अब 99 रुपए तो रेट गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है, लेकिन वो चीनी कहाँ से मिलेगी दुकानदार को नहीं पता। अब गला मंडी से 100 रुपए लेकर उस पर कैरेज बढ़कर 105 रुपए दुकानदार को मिल रही है। अब वो दुकानदार 105 रुपए बेच रहा है। सस्ती चीनी की अदम फरहमी पर दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चीनी की बआसानी दस्तयाबी के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए, जिससे शहरियों और दुकानदारों को फायदा पहुँच सके। चीनी के सरकारी रेट्स पर अमल दरामद न होने से शहरी काफी परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से दिए गए चीनी के रेट्स पर अमल दरामद किया जाए ताकि गरीब आवाम को सस्ती चीनी मैसर आ सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं नासरीन, THQ अस्पताल पिपला में खुदरो पौधों की भरमार हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर गटरों का पानी भी जमा रहता है। मियां वाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट। THQ अस्पताल पिपला को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। अस्पताल के तवील हिस्से में खुदरो जड़ी बूटियां मौजूद हैं, जबकि सीवरेज का पानी भी कई मकामात पर जमा है। शहरियों को कहना था कि गटरों के पानी पर मच्छरों और मक्खियों की बहुतात है। ताफुन के बाइस अस्पताल में रुकना दुश्वार है। भाई के असां साढ़े इतने मरीज दाखिल है। असां राती जिस टाइम आने जात इतना मच्छर होंदा है, बंद इतु सेहत केड़ी मिलती जेली ते खुद के नहीं सीवरेज दा गंदा पानी दा ढिग लगा पिए, डब्बे थाई आए पैन, सारा तरह की थाई मचा पिए, इतने सेहत केड़ी सानू मिलती। MS अल्ताफ कादरी का कहना था कि एक रोज में सफाई कर दी जाएगी। अमला सफाई की कमी के बायस कभी कभार मसाइल निकल आते हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। तरक्याती मंसूबों का जिक्र कर लें तो आपको बताएं कि पक्कियां सड़कां सौखे पिंडे शहरी औलिया की अहम शाहराह नांडला चौक तासोड़ा चौक को दोरया करने का काम शुरू हो गया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और DGMD ने मंसूबे का इफ्तिताह किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। औलिया की अहम शाहराह नाडला चौक सेवड़ा चौक को दोरया करने का काम तेजी से जारी है। सड़क पर इस्फारे डालने का आगाज। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने फीता काट कर सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। इसकी डिजाइनिंग हमने इस तरीके से की है कि हमने दरमियान में मीडियन रखा है और इस मीडियन में 426 दरख्त हमने मौसरी के और तबूबिया के लगाए हैं।
डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसर सलीम का कहना था कि तमाम सड़कों को सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। एमडीए के रोड्स को मॉडल रोड्स बनाया जाएगा और शजरकारी भी की जाएगी। हमने अपना सर्वे मुकम्मल कर लिया है। कमिश्नर साहब की गाइडेंस में हमने आज पहला इफ्तिताह किया है। विहाड़ी रोड भी इंशाल्लाह जल्द होगा और बोसन रोड के ऊपर जो यू टर्न्स हैं वो भी, और हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। चेयरमैन एमडीए राना जब्बार का कहना था कि कमिश्नर मुल्तान के साथ मिलकर शहर के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं रहीम ब्यार खान में भोंग मंदिर पर हमले का मामला। मोटरवे पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 95 मुल्जिमान की डिस्ट्रिक्ट जेल में शनाख्त परेड की गई है। सिविल जज की निगरानी में सानह भोंग में गिरफ्तार होने वाले 95 मुल्जिमान के डिस्ट्रिक्ट जेल में शनाख्त परेड का अमल शुरू कर दिया गया। शनाख्त मुकम्मल होने पर वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का सलमान नईम से टेलीफोनिक राबता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहाली के फैसले पर उनको मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सलमान नईम से टेलीफोनिक राबता किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सलमान नईम को बहाली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुबारकबाद भी पेश की है। नाज़रीन, कपास के काश्तकारों ने रस चूसने वाले कीड़ों और गुलाबी सुंडी का हल निकाल लिया। तंबाकू, कोड़तुमा और नीम के पत्तों का स्प्रे कामयाब तजुर्बा रहा। किसानों ने न सिर्फ लाखों बचाए बल्कि कपास की पैदावार को भी बेहतर कर लिया है। अतहर अशारी की रिपोर्ट के लिए अहम पेशरफ। भावलपुर के किसान ने रस चूसने वाले कीड़ों और गुलाबी सुंडी का हल निकाल लिया। कोड़तुमा, नीम के पत्तों और हींग के स्प्रे का तजर्बा कामयाब। काश्तकार ने मुफ्त में तैयार होने वाली बायो पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से न सिर्फ कीड़ों से फसल को बचाया बल्कि लाखों रुपए भी बचा लिए। कोड़तुमा, नीम, मीठा सोडा, हींग ये रला के इनको बॉयल किते, बॉयल करके इनको छान के ना साफ सुथरा करके टैंकी च पाते इन्हें स्प्रे किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 2500 रुपया पेस्टिसाइड का खर्चा आंदे फी एकड़, जिंदा अस 2500 एकड़ पिछू बचा के ना अपनी फसल बचा के दी। सीनियर ज़रूरी साइंसदानों का कहना था कि कपास पर तंबाकू, नीम के पत्तों और कोड़तुमे का इस्तेमाल जहां फसल और किसान की मईशत के लिए बेहतर है वहीं माहौल के लिए भी मुफीद है। कुदरत ने हमारे लिए जो पेस्टिसाइड के अल्टरनेटिव्स हैं वो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका इस्तेमाल किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसकी एडवोकेसी की और उसके अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नतायज हमें मिले हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील की जानिब से शुरू किए जाने वाले बायो पेस्टिसाइड मंसूबे को अब सराइकी वसेब के काश्तकार संजीदगी से देख रहे हैं। कोड़तुमा और नीम का स्प्रे करके न सिर्फ काश्तकार अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं बल्कि अपनी कपास की फसल को भी बहुत हद तक बेहतर बना रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्त कीड़ों की परवरिश के लिए भी कोड़तुमा और नीम का स्प्रे सबसे ज्यादा मौसर और कारगर साबित हो रहा है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतहर अशारी, बहावलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन सूबाई असम्बली पंजाब सलमान नईम को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान नईम की नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली रुकनी सूबाई असम्बली पंजाब सलमान नईम को बहाल कर दिया। दूसरी जानिब मुल्तान में डीजी एमडीए कैसर सलीम की सरबराही में डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से मौजूद यूटिलिटी प्लांट्स की लिस्ट तैयार करने और मौजूदा स्टेट्स चेक करने के लिए सर्वे शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। मंजूर शुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में डेवलपमेंट वर्क का जायजा और नक्शे में मौजूद बेकायदगियों की भी निशानदही की जाएगी। डीजीएमडी कैसर सलीम की सरबराही में डायरेक्टर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीजीएमडी कैसर सलीम ने डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट को हिदायत दी कि तीनों डायरेक्टोरेट्स प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मामले पर कोऑर्डिनेशन कायम करें। मंजूर शुदा प्राइवेट स्कीमों में मौजूदा मोरगेज शुदा प्लाट्स एमडी के नाम ट्रांसफर करे जाएं और 15 दिन के बाद डेवलपमेंट वर्क की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा कराई जाए। एमडी के अपनी हाउसिंग स्कीमों के एंटी गेट्स पर भी मौजूद तजावुजात को खत्म किया जाए। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।